Okay, so now this is a quiz preview for budgeting. Pay attention, class. A master budget consists of individual budgets made for short-term goals. Emphasis is put on cash resources for capital planning. Interrelated budget for an action plan for a specific time period. Focuses on review of progress towards long-term goals. सारे सही हैं? Individual budgets made for short-term goals. Short-term goals? No, sir. नहीं. Emphasis is put on cash resources for capital planning. खाली capital planning के लिए तो नहीं है ना? No, sir. Cash resources तो हैं लेकिन चलें third one. Interrelated budget for an action plan for a specific time period. ये ज़्यादा अच्छा है. C. Focuses on review of progress towards long-term goals. हाँ सही है लेकिन C is much better. So I would go for option number C. Okay. Option number C. Option number C. Next one. Now option number C. Next one. L company produces hand tools. For March, budgeted sales are 12,000 units. Beginning finished goods inventory will be 1,200 units, and ending finished goods inventory will be 1,400 units. March production will be. Sales opening आपके पास कितनी है? 1,200. Okay. Then your production will be 12,000. So this will give you जितना आपके पास. Okay. For March budgeted sales, these are sales. 12,000 are sales. Sales. 12,000. So 12,000 plus 1,200, this will be 13,200, and then your closing inventory would be 1,400. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? This is the formula. Okay. आपने जितना प्रोड्यूस, जितना सेल करना है वो, और जितना आपके पास पहले से पड़ा हुआ है वो ऐड करना है. जितना आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास पहले से पड़ा हुआ है 1,200 यूनिट्स, ठीक, और आपने 1,200 यूनिट्स आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, और आप क्या चाहते हैं आखिर में कितना बच जाए? 1,400 आप चाहते हैं कि आखिर में बच जाए, ठीक है, और आपने सेल्स कितनी करनी है? 12,000 आपने सेल्स करनी है, वो तो आपने बनाना ही बनाना है. ओके, 12,000 आपने बनाना है. इसके अलावा आपने वो भी बनाना है जो आखिर में आप चाहते हैं कि आपके पास मौजूद हो, पड़ा हो, क्लोजिंग इन्वेंटरी, which will be 1,400. So that means 12,000 plus 1,400. This will give you 13,400. ये आपको चाहिए. लेकिन इसमें आपके पास पहले से मौजूद कितना है? Opening, which is 1,200. So that means how much you need to produce? 12,200. ठीक है? सी सही है? ये हमने लिख के भी दिया था. Yes sir. सही? ओके. सही है क्लास? Yes sir. लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? लॉजिक समझ आई है क्या है? Yes sir. जितना पहले से पड़ा हुआ है, ठीक, वो तो मौजूद है ना. बनाना कितना है? जितनी सेल करनी है वो बनाना है, yes, और जितना क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी वो भी बनाना है. ये दो चीजें बनानी है, इनको ऐड कर दें. Which means your budgeted sales and your closing inventory ये बनाना है. लेकिन इसमें से ये पहले से पड़ा हुआ है, opening inventory. So this will be subtracted and you will get the answer, which is 12,200. Okay, let's move on. J company produces hand tools, budgeted sales will be March 12,000. Okay, this is the same figures. These are the same figures. No sir. No, okay, different. अच्छा, March 12,000 units, budgeted sales. April 14,000, May 16,000, and June 19,000. सारे अलग-अलग आपको दे दिए. Ending finished goods inventory policy is 10% of the following month sale. 10% of the following month, जो अगला month आएगा. March 1st inventory is projected to be 1,500 units. March 1st, ये कौन सी हो गई? Beginning हो गई. So opening for March is 1,500 units. How many units will be produced in March? ठीक है? How many units will be produced in March? March में आपने कितना प्रोड्यूस करना है? अब देखें, budgeted sales. March में सेल्स कितनी होगी? 12,000. ये भी आपने प्रोड्यूस करना है. These are your budgeted sales. Okay. Ending finished goods inventory policy is 10% of the following month sale. तो मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? अप्रैल की सेल्स कितनी है? 14,000. इसका कितना परसेंट आपके पास मार्च में होना चाहिए? 10%. तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंटरी 10% होना चाहिए ऑफ 40,000. So this is equal to 1,400. Okay, तो आपके पास
कितना होना चाहिए 13,400। इसमें से आपके पास पहले से कितना पड़ा हुआ है प्रोजेक्टेड टू बी 1500। 1500 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है which is your opening inventory, so you subtract it and you will get जी 11,900। सही है? क्लियर है सर? क्लियर है क्लास सबको? ओके, लेट्स मूव ऑन। A company produces leather handbags. The production budget for the next 4 months is 6,000 units, 8,000, 7,500, 8,000. Each handbag requires 0.5 square meters of leather. ठीक है? ये उसका raw material जो लगेगा। A company's leather inventory policy is 30% of next month's production needs. 30% of next month's production needs, जो भी है। On July 1st, leather inventory was expected to be 2,000 square meters. July 1st को, July 1st इसके लिए क्या बन जाएगा? Opening. Opening आपके पास है 2,000 square meters. Leather is expected to cost 6 per square meter. ये उसकी cost उसने आपको बता दी। What is the expected cost of leather purchases in July? Leather जो आप purchase करेंगे जुलाई में उसके पैसे कितने लगेंगे? तो पहले तो आप ये find out करें कि कितना leather purchase करना है। उसके बाद उसको multiply कर देंगे इस figure के साथ 6 per square meter and then you will get the amount कि कितना amount है। अब उसको find out करने के लिए जिस तरह ये किया था exactly same तरीके से आपने ठीक है exactly same तरीके से ओके। प्रोडक्शन बजट फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ इज जुलाई 6,000। जुलाई में आपने 6,000 यूनिट्स बेचने हैं, लेकिन 6,000 यूनिट्स के लिए आपको कितना लेदर चाहिए होता है? 6,000 यूनिट्स के लिए आपको लेदर चाहिए होता है 0.5। एक हैंडबैग में 0.5 स्क्वायर मीटर लगता है, तो 6,000 में कितना लगेगा? 3,000 लगेगा। ये 3,000 ये आपका लगेगा स्क्वायर मीटर आपके पास लेदर। अब पॉलिसी क्या है क्लोजिंग इन्वेंटरी की कि 30% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन। नेक्स्ट मंथ क्या है? ये कौन सा मंथ था? जुलाई। जुलाई के नेक्स्ट मंथ कौन सा है? अगस्त। अगस्त में कितना है? 8,000। लेकिन 8,000 के ऊपर कितना लेदर लगता है? 4,000। और इस 4,000 का कितना आपके पास मौजूद होना चाहिए? 1200। कितना परसेंट? 30%। So 30% of 4,000. 3 4s are 12. 1,200. 1,200 आपके पास ये होना चाहिए प्लस 3,000 ये भी होना चाहिए। तो कितना हो गया आपके पास? 4,200 होना चाहिए। लेकिन इसमें से पहले से आपके पास कितना मौजूद है? Expected to be 2,000. 2,000 पहले से आपके पास पड़ा हुआ है। तो अगर 2,000 पहले से पड़ा हुआ है तो आपने कितना खरीदना है? 2,200 खरीदना है। अब ये स्क्वायर मीटर में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है रुपीस के अंदर या डॉलर्स के अंदर। सो 2,200 मल्टीप्लाई बाय 6। सो 2,200 मल्टीप्लाई बाय 6। सो दिस विल गिव यू 13,200। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है क्लास? अब तक क्या पोजीशन जा रही है? सही जा रहे हैं? गलत जा रहे हैं? सही जा रहे हैं। ओके ओके क्लास, लेट्स मूव ऑन। Why company produces chairs? अब ये chairs बनाते हैं। The production budget for the next 4 months is July 6,000, August 7,000, September 7,500. Each chair requires 2.2 hours of skilled labor. ठीक है? अब लेबर के ऊपर आ गया 2.2 hours। एग्जाम में इसी तरह जाएंगे। अच्छा, पहले सेल्स का बजट होगा, फिर उसका बजट होगा, लेकिन हर बजट का पिछले बजट से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर एक गलत हो गया अगला आप सही कर सकते हैं। ठीक है? इंशाल्लाह। एग्जाम में सेम स्ट्रेटजी, almost same questions, difficulty level भी almost same। इसमें as such there is no difficult thing। All you need to understand is this thing, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? ओके आगे चलिए। So each chair requires 2.2 hours of skilled labor which is paid 15 per hour। wage rate भी आपको बता दिया। How much will be paid to skilled labor during the quarter 3? पूरे क्वार्टर में कितना उनको पे करना है। ओके अब देखें जी, जुलाई 6,000, August 7,000, September 7,500। ये सारी आपकी चेयर्स हैं। ओके each chair requires 2.2। इन सबको 2.2 से मल्टीप्लाई करें। तो इन सबको पहले ऐड कर दें, फिर 2.2 से मल्टीप्लाई करें। 7 7 14, 14 6 20, 20,500। इसको मल्टीप्लाई करते बाय 2.2 आवर्स। आपके पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 45,100 आवर्स। ये आवर्स आ गए। अब इसका वेज रेट फाइंड आउट करें। वेज रेट इज 15, सो मल्टीप्लाई बाय 15। दिस विल गिव यू द कॉस्ट
676 B. 676 500. Yes. सही है, ऑप्शन नंबर बी. Let's move on. B company has forecast production for the next 3 months as follows: July 5,000 units, August 6,600, September 7,500. हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ. ये जो यूनिट्स आपको हर क्वेश्चन में बता रहे हैं ना, इसमें कोई ट्रिक आपके साथ कर सकता हूँ. ना करें सर. ठीक है? ना करें सर. बता रहा हूँ आपको, सारा एग्जाम में आपको साफ साफ बता रहा हूँ क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. वो तो नहीं बता रहे क्या करेंगे. वो भी बता रहे. कि क्या करूंगा. Yes, sir. अच्छा चलिए ये बता देता हूँ क्या करूंगा. अच्छा गौर से सुनिए, मैं क्या कर सकता हूँ आप इसमें कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको एक मंथ का बता दूं, नेक्स्ट मंथ का नहीं बताऊं, और आपसे कहूं कि अगले महीने आहिस्ता आहिस्ता लेट्स से कोई ऐसी प्रोडक्ट लूं जिस तरह स्वेटर्स, जैकेट्स, और अगले महीने सर्दी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होगी एक्सपेक्टेड. So the demand is expected to increase every month by 10% या whatever जो भी है. ठीक है, तो फिर आपने हर महीने उसके मुताबिक ज्यादा करना होगा. या इसके ऑपोजिट कर सकता हूं कि गर्मी आ रही है तो जैकेट्स की डिमांड कम होगी, सो एवरी नेक्स्ट मंथ द डिमांड वुड डिक्रीज बाय दिस मच. ठीक है, तो इस तरह की चीजें कर सकता हूं. ओके, आगे चलिए, बल्कि करता भी हूं. ठीक है, अच्छा आगे चलिए. For the next 3 months as follows: July 5,000, August 6,600, September 7,500. Monthly manufacturing overhead is budgeted to be 17,000 plus 5 per unit produced. अब ये जो 17,000 आपको बता रहा है ये कौन सा है? Fixed. और वेरिएबल कितना बता रहा है? 5 per unit. Okay. What is budgeted manufacturing overhead for July? अब ये कह रहा है budget manufacturing overhead for July. ये टोटल की बात आपको कर देते हैं. ठीक है? कि budgeted overhead जुलाई के लिए कितना होगा? Okay, let's find out. प्रोडक्शन आपको गिवन है और आपको मंथली मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 17,000 आपने फाइंड आउट करना है जुलाई के लिए. तो जुलाई में एक तो हो जाएगा आपका 17,000. ठीक, फिर आपके पास 5 पर यूनिट प्रोड्यूस है. 5 पर यूनिट प्रोड्यूस, आपके पास यूनिट्स कितने हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई? 5,000. सो 5 into 5,000 will give you 25. 25 plus 17 will give you 42. सही है, 42,000. क्लियर? आसान है? Yes sir. ओके, आगे चलिए. एस कंपनी एस फोकस. अच्छा, यहाँ पे कंपनी के नाम उसने एस जे वी वी इस तरह दिए. मैं नॉर्मली जो नाम देता हूँ वो आपको पता है. बाबा खान कंपनी. हाँ, बस इधर उधर के नाम होंगे थोड़े से. ठीक, पहले कुछ नाम देता था वो अजीब से, जिस तरह होता था क्या नाम था पहले देता था बाबूजी और चराग और खान लाला. बस इस तरह के क्रश इस तरह के नाम होते हैं. ठीक, तो अभी पता नहीं इस बार क्या करूंगा, वो डिपेंड करेगा कि मैं किस हूं. ओके, पुष्पा. झुकेगा नहीं सर. अच्छा चले, इस बार ये नाम ट्राई करते हैं. ओके, एस कंपनी हैज फोरकास्ट सेल्स टू बी 120,000 in Feb, 145,000 in March, 170,000 in April and 180,000 in May. All sales are all sales are made on trade. All sales are made on trade. Yes sir. Okay, all sales are made on trade and sales are collected 60% in the month of sale and 40% the month following. What are budgeted cash receipts in March? मार्च के अंदर आप कितना रिसीव करेंगे? ओके, 120,000, 145,000. इससे पहले वाले साल में महीने में 120 और इस मंथ में 145. ओके, अब वो आपसे कह रहा है कि सब क्रेडिट पे है और सेल्स जो मिलेगी 60% इन द मंथ ऑफ सेल, और आपने मार्च को फाइंड आउट करना है. ये मार्च की सेल्स है. ठीक है, 145, इसका 60% आपको सेम मंथ में मिल जाएगा. सो इसका 60% कितना बनेगा? कितना? 87,000. ओके, 87,000 ये हो गया. फिर आपसे ये कह रहा है कि 40% द फॉलोइंग मंथ, इसका 40% अगले महीने में. उसको तो छोड़ दे, उसका काम नहीं है मेरे साथ. इसका 60% यहां मिलेगा और इसका 40% यहां पे मिलेगा. तो इसका 40% कैलकुलेट कर दें. 48,000. अब आपसे कह रहा है कि कैश रिसीट्स कितनी होंगी? 87 plus 48 135. B. Option number B. Clear? Clear class? Okay. F company has forecast purchases on account to be 210,000 in March. Okay.
So if company has forecast purchases on account to be 210,000 in March, 270,000 in April, 320,000 in May, and 390,000 in June. 70% of purchases are paid for in the month of purchase. The remaining 30% are paid in the following month. What are budgeted cash payments for April? आपने अप्रैल में पेमेंट कितनी की है? अप्रैल में आपके पास 270,000 in April. 270,000 आपने परचेज किया. इसका कितना परसेंट आप अभी दे रहे हैं? 70% in the same month. So find out 70% of this figure. 63,000. ये आप इसी मंथ में पे करेंगे. और फिर इसके साथ पे करेंगे 30% जो पिछले महीने का है. पिछला महीना इससे कौन सा था? 210. इस 210 का 30% आप इस महीने पे करेंगे, which is equal to 75,000. So 63 plus 75 will give you. सर 63 नहीं आता. नहीं आता? चेक करें जी, फिगर चेक करें क्लास. ये 30% है. ये the remaining 30%, ये तो 30% ये फाइंड आउट किया. 163 189 है सर. 270,000 का 70% क्या आएगा? 189. 90 189. 189,000. So this is 189,000. पिछले महीने का 30% is equal to 75. चेक करिए 75 है. 210 का 30% कितना आएगा? 210 का 30% कितना आएगा? 63,000. 63,000 और 63 plus 189 will give you 252,000, which is option number A. ये भी हो गया. Move on. E-company has forecast sales to be 225,000 in February, 235,000 in March, 250,000 in April, and 240,000 in May. All sales are made on credit, and sales are collected 60% in the month of sale and 40% the following month. What is budgeted accounts receivable balance on May 31st? अब यहाँ पे आपसे कह रहा है budgeted accounts receivable balance. कैश कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस की बात कर रहा. ओके, ऑन May 31st. मई को आपने कितने बेचे? 240,000. इस 240,000 में से आपने कितने पैसे वसूल कर लिए? 60%. 60%. इसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है कितना अकाउंट रिसीवेबल है, तो आपने फाइंड आउट करना है इसका 40%. So 40% of 240,000. 24 multiplied by 8, 96. 96,000. सही है? सही है क्लास? Yes sir. B. जाएंगे? Okay. N company. N company is preparing a cash budget for June. The company has 12,000 cash at the beginning of June and anticipates 30,000 in cash receipts and 34,500 in cash disbursements during June. Northern company has an agreement with its bank to maintain a cash balance of at least 10,000. To maintain the 10,000 required balance during June, the company must. Okay. क्या करेगा? Okay, let's see जी. आप लोगों ने जून का देखना है. कैश बजट जून के लिए बनाना है. 12,000 cash at the beginning of June. Opening 12,000. Sales 30,000. And anticipates 30,000 in cash receipts. 30,000 आपके पास और आ जाएंगे. तो आपके पास कितने हो गए पैसे? 42. Okay. And 34,500 in cash disbursement. आपने पैसे इसमें से कितने देने हैं लोगों को? 34,500. तो आपके पास कितने बच गए? 7,500. जी 7,500. लेकिन आपको कैश बैलेंस कितना चाहिए? 10,000. 10,000 का. तो आप कितने शॉर्ट हैं? 2,500. 2500. बोरो 2500. सही है? सही है, आगे जाएं. Yes sir. ओके. पीक सेल्स फॉर J&J प्रोडक्ट्स. पीक सेल्स for J&J products, a wholesale distributor of leaf rakes, occur in August. Sales, the company's planning budget for the third quarter are shown below. Budgeted sales on account: July 600,000, August 900,000, September 500,000, total 2 million. 6 plus 9 15, 15 plus 5 20. So yeah, 2 million. From past experience, the company has learned that 20% of a month's sales are collected in the month of sale. Another 70% are collected in the month following sale, and the remaining 10% are collected in the second month following sale. Okay. Bad debts are negligible, no bad debts, and can be ignored. May sales total 30,000, and June sales total 540,000. Required है prepare a schedule of expected cash collections from sales by month and in total for the third quarter. आपको
तीनों थर्ड क्वार्टर के लिए, तीनों मंथ के लिए फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको पूरा प्रॉपर ये बनाना पड़ेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड देन फाइनली टोटल, ये आपको बनाना पड़ेगा। ओके, द कंपनी हैज लर्न्ड दैट 20% आपके पास सेल्स गिवन है, जुलाई में 600,000, अगस्त में 900,000, सितंबर में 500,000, टोटल 2 मिलियन की सेल्स। ये भी हो गया। The company has learned that 20% of month sales are collected in the month of sale. 20% month of sale. तो 20% अगर same month में collect करें, 20% of 600 will be 120,000. 20% of 900, 180. 20% of 500, 100. सही है? सही? आगे चले। फिर वो कहता है कि 20% of month sales are collected in the month of sale. Another 70% are collected in the month following sale. इसका 70% यहाँ पर आएगा. Okay. इसका 70% would come over here. 70% of 6, 7 6 are 42. 420,000. 70%. 9 7s are 9 7s are 63. 630,000. Okay. ये भी हो गया और इसका यहां पर मिलेगा, which means अक्टूबर में, इसलिए इसको छोड़ दें। ओके, इसको छोड़ दें। 70% के बाद 10%, ये 10% आपको कब मिलेगा? And the remaining 10% are collected in the second month following sales. इसका 10% यहाँ पे मिलेगा, इसका 10% यहाँ पे आएगा। So 10% will be 60,000. ये भी हो गया। May sales, अब उसने मई और जून भी आपको दे दिया है। जून, मई की सेल्स कितनी है? 430. जून की सेल्स कितनी है? 540. अब इसकी भी कैलकुलेशन कर लें। मई की सेल 60% यहीं पे आएगी, इसको छोड़ दें। जून की 60% यहीं पे, सॉरी 20% यहीं पे आएगी, इसको छोड़ दें। 70%, इसका 70% यहां पर आएगा, इसको भी छोड़ दें। इसका 70% यहां पर आएगा, इसको लेते हैं। सो 70% ऑफ 540,000, 378,000, ये आ गया। ओके, अच्छा अब आगे देखें जी। फिर 70% के बाद 10%, इसका 10% यहां पर आएगा। So इसका 10% would come over here. 540 का 10% would be 54,000. यहाँ पे एक स्पेस बच गई, इसका 10% यहां पर आएगा। 430 का 10% 43 at the mark. 600 plus 120 plus 378, 378 ये भी है? Yes sir. 378 plus 43 at the mark. G class at the mark. यार इतनी देर में मैं कर देता इसको। Marker, anyone else? Marker. 531,000 चेक करेंगे। ये 43 है, ये 6 7 8 9 10, सॉरी 11। 1 million 1 million 141,000. वही ना यार 141,000. 1 million 141,000. 141,000। 6,000 Sales. 600 तो नहीं, ये तो सेल्स हैं। Yes sir. प्लस ये सेल्स हैं, ये ऊपर वाली सेल्स हैं। कलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है 20 70 10, ये सेल्स हैं, इसके साथ कुछ नहीं करना आपने। So 120 plus 378 plus 43 551. 541,000 for the first one. For the second 180 plus 420 plus 54 6
54,000. Okay, last one. Last one, class. Last one would be 790,000. Okay. यहाँ आपके पास. Now add them up. 541 plus 6, 54 plus 790. You will get for the whole quarter. 541 plus 654 plus 790. 985,000. 985,000. This is the answer. Clear है? Clear है? Compute the account receivable as September 30th. September 30th का account receivable. September 30th. कौन-कौन से पैसे आपको नहीं मिले? Okay? अब देखिए. Class pay attention. कौन-कौन से पैसे आपको नहीं मिले? आपको सितंबर के 20% मिल गए. सितंबर का 80% रहेगा. सितंबर का 80%. So 500,000 का 80%. 500,000 का 80%. 5 8s are 40. 400,000. August. Class pay attention. August. 900,000 का 20 मिल गया. 70 इधर आ गया. ठीक. 10 रहेगा. 900,000 का 10%. 90,000. 600,000 का 20 इधर आ गया. 70 इधर आ गया. 10 इधर आ गया. ठीक. इसका मतलब 90 plus 40 equals 490,000 is your account receivable. सही है? Okay. आगे चलिए. Micro Corporation. Micro Corporation has budgeted sales of its microchips for next 4 months as follows. Units sold is given. The company is preparing production budget for the third quarter. Ending inventory level must equal 20% of the next month's sale. So ending inventory next month की sales के 20% होना चाहिए. Okay. Calculate the ending inventory as of March 31st. March 31st की ending inventory क्या होनी चाहिए? मार्च इससे पहले है ना, अप्रैल से पहले. तो मार्च की एंडिंग अप्रैल के 20% के बराबर होनी चाहिए. अप्रैल 20,000 है, तो 20,000 का 20%. हाँ, 4,000. 4,000. चेक कर ले क्लास. सही है? सही है? Okay. Prepare a production budget for the third quarter by month and in total. So third quarter starts from April, May, June. Okay. April, May, June, total. Okay. Production budget. Production budget आप लोगों ने सेल्स से कैलकुलेट करना. Okay. Sales for April 20,000. Sales for May 25. For June 35. For July 40. ये हो गया. आपने एंडिंग इन्वेंटरी लेवल 20% फाइंड आउट कर ली है ऑलरेडी मार्च 31st की. ये भी हो गया. मार्च 31st की जो एंडिंग इन्वेंटरी है वो अप्रैल की ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी. सो दिस वुड बी 4,000. अब आपने सेल्स 20,000 की भी करना है. ठीक. 4,000 आपके पास पहले से पड़ा है और आपको एक क्लोजिंग इन्वेंटरी भी चाहिए. क्लोजिंग इन्वेंटरी जो आपको चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 20% ऑफ नेक्स्ट मंथ. ओके. सो 20% ऑफ 25 5,000. 20% ऑफ 35 7,000. 20% ऑफ 40 8,000. ठीक. ये एंडिंग इन्वेंटरी. अब इसकी जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाएगी. इसकी जो क्लोजिंग है नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग बन जाएगी. फॉर्मूला वहां पे आपको लिख दिया हुआ है. सेल्स आपको चाहिए, क्लोजिंग भी आपको चाहिए. ओपनिंग को माइनस कर दें. 20 plus 5 25 minus 4 21. 25 plus 7 32 minus 5 27.
32 minus 5, 27. 35 plus 8, 43. Minus 7. यह आ गया आपके पास सारे मंथ्स का, क्वार्टर का। क्वार्टर का आपको चाहिए प्रोडक्शन 21 plus 27 plus 36, 84. ओपनिंग फॉर द क्वार्टर कितना है? 4. ओपनिंग फॉर द क्वार्टर, क्लोजिंग फॉर द क्वार्टर 8. सेल्स फॉर द क्वार्टर 80. 80 Yes, sir. 80 हो गया ना? 20 25 plus 35, 80. 80 plus 8, 88 minus 4, 84. क्रॉस चेक, सही है? Z कम नहीं, कितना कम रहेगा? बहुत ज्यादा। अच्छा, Z कम नहीं करते हैं and then we will call it off. ठीक? फिर उसके बाद we have a next class and then we have next quiz. ठीक है? Okay. हाँ, डिसीजन मेकिंग इंशाल्लाह। बस कर लेते सर। Okay, Z company class. Z company sells a single product. Each unit takes 2 pounds of material. It costs 3 per pound. Company has prepared a production budget for quarters for year 2 and for the first quarter of year 3 as follows. So year 2, first, second, third, year 3, first, second, third, fourth, and year 3 का first quarter. ये आपकी production है. The ending inventory at the end of a quarter must be equal to 25% of the following quarter's production needs. वही बता दिया. 26,000 pounds of material are on hand to start the first quarter. Opening हो गया of year 2. Purchases are paid for 40% in the quarter of purchase and 60% in the following quarter. ये भी हो गया. Prepare direct materials budget for the chips by quarter and for year 2 in total including the normal amount of purchases. So now you have first quarter of year 2, second quarter of year 2, third quarter of year 2, fourth quarter of year 2, and then you have first quarter of year 3. Okay, budgeted production आपके पास कितनी है? 30,000, 60,000, 90,000, 100,000. तो इसका मतलब टोटल आपके पास कितनी होगी साल की? टोटल फॉर द ईयर, टोटल फॉर द ईयर क्लास कितना हो गया? 190 plus 6, 250 plus 30, 280. 280,000. And the first for the next year will be 50,000. ये प्रोडक्शन हो गई. Yes, sir. Ending inventory. Ending inventory at the end of a quarter must be equal to 25%. So your closing inventory 25% of the next month. So नेक्स्ट क्वार्टर 25% of the next month. 60. इसका 25% यहाँ पे लगेगा. जी. 25% of 60. 15,000 15,000. 25% of 90. 22,500 22,500. सही है? Okay. 25% of 100. 25,000. 25% of 50. 12,500 12,500. ये आ गई क्लोजिंग इन्वेंटरी. फिर वो आपसे कह रहा है कि 26,000 pounds of material are on hand to start the first quarter of year 2. इसका ओपनिंग कितना है? 25. इसका ओपनिंग कितना है? 26,000 pounds. फर्स्ट क्वार्टर इसका 26,000 से आप स्टार्ट करते हैं ओपनिंग. इसका ओपनिंग होगा, इसका क्लोजिंग. सो 15,000 इसका ओपनिंग आ जाएगा. इसका ओपनिंग होगा, सेकंड का क्लोजिंग 22,500 इसका आ जाएगा. इसका ओपनिंग होगा, थर्ड का क्लोजिंग 25,000 और फर्स्ट का ओपनिंग होगा, फोर्थ का क्लोजिंग 12,500. ये भी क्लियर हो गया. आगे चलें. Purchases are paid for 40% in the quarter of purchase and 60% in the following quarter. आपने डायरेक्ट मटेरियल का बजट बनाना है. ठीक है? आपने डायरेक्ट मटेरियल का बजट बनाना है तो पहले तो आपने ये देखना है कि प्रोडक्शन कितनी करनी है. 30,000 आप ये सेल कर रहे हैं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है. 30,000 आपने सेल्स कर, सॉरी बजटेड प्रोडक्शन है. 30,000 आपने प्रोडक्शन कर. 15,000 आपके पास और नहीं होने चाहिए. सो 30 plus 15
45 26,000 आपके पास पहले से मौजूद है, सो 30 प्लस 15 माइनस 26 19 ये आपने खरीदने हैं, ठीक है। 60 प्लस 22 500 माइनस 15 82 500 माइनस 15 67 500 90 plus 25 minus 22,500 92,500 100 plus 12,500 minus 25,000 112,500 ये चीजें आपने परचेजेस कर दी, ठीक है, ओके, ये भी क्लियर हो गया। परचेजेस आर पेड फॉर 40% in the quarter of purchase and 60% in the following quarter, ठीक। लेकिन इसको पहले पैसों में तो कन्वर्ट करें ना, ये तो पाउंड्स है, ठीक है, ये तो आपके पास जो आ रहा है ये तो पाउंड्स है। इसको कन्वर्ट करने के लिए each unit takes 2 pounds of material, एक यूनिट पे 2 पाउंड लगेगा, ठीक है, एक यूनिट पे 2 पाउंड लगेगा। तो अगर 19,000 यूनिट्स बनाने हैं तो इस पे कितना पाउंड लगेगा? एक मिनट ये बजट प्रोडक्शन जो है ये क्या चीज है? ये यूनिट्स है ना, ओके। एंडिंग इन्वेंटरी जो इसने यहाँ पे आपको दी गई ये क्या है? पाउंड्स है, ये यूनिट्स है। इस यूनिट को बनाने के लिए कितना पाउंड लगेगा? 60,000। तो ये तो हमने किया ही नहीं, ये तो आपसे रह ही गया। अब यहाँ पे आपने लिखना है 60, यहाँ पे लिखना है 120, आपने सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ये प्रोडक्शन यूनिट्स में था, इसको कन्वर्ट करना था पाउंड्स के अंदर। इसके हमने पाउंड्स में कन्वर्ट ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, ठीक। ये यूनिट्स में, ये पाउंड्स में, ये यूनिट्स में, ये पाउंड्स में, ये यूनिट्स में, तो ये पाउंड में कितना हो जाएगा? 180। ये यूनिट्स में, पाउंड में 200,000, ये यूनिट्स में, पाउंड में 100,000। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दोबारा करनी पड़ेगी। क्लास 60 प्लस 15 माइनस 26, दिस इज द कैलकुलेशन। 49 हम लोग कैलकुलेशन में गलत हो गए। 49 ये 120 प्लस 22,500 माइनस 15 127,500 180 प्लस 25 माइनस 22,500 172,500 200 प्लस 12,500 माइनस 25 12,500 ये आ गया आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने कॉस्ट के साथ, 3 के साथ, सो मल्टीप्लाई बाय 3, सो 49,000 मल्टीप्लाई बाय 3 147,000, okay, 127,500 multiplied by 3 127,500 multiplied by 3 382,500 172,500 multiplied by 3 517,500 212,500 multiplied by 3 637,500 ये आ गए सारे पैसे आपके पास। यस सर। अब वो कह रहे हैं इस पैसों में से 40% सेम बॉटम ऑफ परचेज, 60% इन द फॉलोइंग, 40% सेम, 60% फॉलोइंग, 40% सेम, इसका 40% यहाँ पे आ जाएगा। 147,000 का 40% 58,800 ये ले, इसका 60% यहाँ पे आएगा जी। 147,000 का 60% 88,200 382,500 का 40% यहाँ पे आ जाएगा 382,500
500 का 40%. 40%, 153. 153,000. ओके, 382,500 का 40% यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 153,000 का 60% यहाँ पे है। 382,500 का 60% यहाँ पर है, 81,000। देखें, इसका 40% ये आ गया, इसका 60% ये आ गया, इसका 40% ये आएगा, इसका 60% इधर आएगा। 29,500, 517,500 का 40% यहाँ पर है। 07,000 फुल 07,000। ओके, इसका 60% यहाँ पर आएगा, 310,500, 637,500 का 40% यहाँ पर आएगा, 25,000, Sir, 255. 255,000, 255,000, 255. 255,000। ये भी हो गया। ओके, आपने सारा कैश भी फाइंड आउट कर लिया और बस इसको टोटल कर दें और आपके पास, लेकिन पिछले क्वार्टर का कुछ आपको गिवन था, फर्स्ट ईयर का फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट ईयर का क्वार्टर फोर्थ नहीं गिवन तो फिर ये फिगर आपके पास नहीं आ सकती, ये फिगर नहीं होगी। अगर फर्स्ट ईयर का क्वार्टर फोर्थ गिवन नहीं है तो ये फिगर नहीं होगी आपको। ठीक है, इसको आप ऐड कर दीजिएगा, यू आर डन विद दिस वन। बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको पर छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, और दिस इज योर क्विज। ओके, थैंक यू। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास